Good morning, sir. Yes, good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Yes, I request everyone to keep your camera in the active state. Yes, Jasleen and Mr. Saksham. Yes, so कल जो वर्कशॉप थी इसमें किसने पार्टिसिपेट किया yesterday? Bhavya, I know Bhavya got the certificate also. Yes, Shriya. Sir, I wasn't able to join. I don't know, maybe because of network problem, it was not taking me in. Okay. And what? Yes, Bhavya. Bhavya will explain whatever the experience she got yesterday. It was really very interesting, and we got to know about how to face recognition app, Yes, how to program that. Yes, that was the best thing. Actually, we are learning about AI theoretically, but how to do it practically, so that we got exposed yesterday. Or anything else, like they were sharing very applied sort of examples, like वो जो थी looping के case में they were discussing about the program based on the वो जो lift के base पे था program. That was really nice. So taking applied example is very, very important. So we most of the times being teachers also, we are taking the example which we are taking for last number of years. So that basically now puts a good sort of questioning to teachers also to basically bring up new examples also. And there was one more example on that. एक तो वो थी जो फेस रिकॉग्निशन वाली थी, एक और थी वहां पे है जो एक और एक्सरसाइज थी वहां पे, वो कौन सी थी? वो प्रोग्राम लिखना था टू आइडेंटिफाई की फीचर्स दिए हुए हैं टू प्रिडिक्ट कि वो किस चीज को बिलोंग करती है. यस यस यस. देखो जो हम पढ़ रहे हैं ना डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, उसके बिल्कुल उल्टा है प्रिडिक्टिव एनालिसिस. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में तो ये है कि हमारे पास व्हाट वी हैव उसका एनालिसिस करना. एंड नो दी मशीन लर्निंग जैसे है, एआई है, दैट इज हाउ टू प्रिडिक्ट फॉर द फ्यूचर. सो नो द मोर एंड मोर जॉब्स आर देयर टुवर्ड्स द नाउ वी हैव प्रिडिक्टिव एनालिसिस. ठीक है, तो अच्छा एक्सपोजर था इसमें.
So I request everyone, Jasleen, Saksham, Romika, Harshit Jain, please switch on your camera. और जो क्विज था दैट वाज आल्सो वेरी इजी. क्विज में जो क्वेश्चन थे हो गए थे सारे. Yes, sir. हाँ, इजी थे क्वेश्चन. We had already done most of them. हाँ काफी बेसिक्स वाले तो हमने सारे किए हुए थे. हाँ And the next one for a few tricky means सोचना पड़ना था उनमें थोड़ा. तो हाँ, जब तक आप सारे आंसर नहीं करते, ही वाज नॉट अलाउइंग टू गो बियॉन्ड दैट. तो सभी का आंसर तो कितने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एडवांस थोड़े क्वेश्चन थे, कितने गलत हुए क्वेश्चन? एक गलत हुआ था और वो सेकंड अटेम्प्ट में भी गलत हुआ, फिर थर्ड में ठीक हो गया. ठीक है, गुड गुड. सो दैट वाज रियली सॉर्ट ऑफ ए अच्छा एक्सपीरियंस था उसमें. सो नाउ वी मूव टू यस. रोमिका, आपने किया था पार्टिसिपेट? So I was not well yesterday. ओके. वैसे रजिस्टर किया था आपने? ठीक. मिस्टर जैन, मिस्टर हर्षित जैन. सर मेरे को बाहर ले गए सर, मैंने कल किया वो रजिस्टर. ठीक बाहर है, चले गए. कोई बात मैंने नहीं. भी करना था. चलो ठीक है. सो नाउ वी मूव टू दी टुडेस टॉपिक. Clear. So we were discussing about the basically how to go for the calculation of quartile. Yes, what we have covered in the last lecture, something who will basically, we are joining the class after a couple of days. Yes, anyone who will basically give a recap? Yes, Shriya. So in the last class we discussed about how to find mean, median and mode. Then afterwards we discussed about quartile, that is first quartile, second quartile and third quartile. ठीक है. हर्षित, आप बताओगे व्हाट इज मोड? क्या था? व्हाट इज मोड? इज मोड बेसिकली टेल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू. मतलब कि कितनी बार रिपीट हो रही है वैल्यू, वो बताता है वो. the value with that is the highest frequency. Clear. That is the model value we have in the data. Clear. So and then we were having the median. Yes, भव्य, आपको explain क्या है median क्या है? So mid value of all the values is called median. Yes. So first of all, we have to arrange the values in a particular order, either in the ascending order or in the descending order, and then we have to basically using the formula get the middle value. And then similarly we calculated for the average also, how to calculate the mean, and then the other functions we calculate sum, count, minimum and maximum. So these are the functions that we have concentrated last. Next we were focusing on the basically the quartile. तो पहले इस डाटा को एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है जी. So let us say implement this data. So first company was TCS, and let's say we take one more. Second company, let's say this is Wipro. And the third company we take it as L&T. So like this is the data we have now. Next is how to convert into a data frame.
Now our next main aim is how to basically work with the function for the quartile. So for quartile we have the method name is quantile. Clear? So the method name is quantile, and then is what are the parameters that is to be find out. That is 25th quantile, then is the value for 50th percentile, then is 75th percentile, and then is the fourth quartile, and we say the axis is equal to 0. So these are the parameters. So let us apply this function. So that is print. So let us we apply this after the data frame. So the method name is quantile. Then we mention the 25th percentile. Then is the 50th percentile. Clear? And then we mention here the parameter is axis is equal to 1. Clear? So you can see here, this is what data we are getting. That is the 25th. That is the 25th percentile. Then we have this is 50th percentile, 75th percentile, and so on. So this is how we get this operation is basically there. Axis is equal to, we have applied axis is equal to 1. So this is, if we go with the axis is equal to 0. So this is the row wise, and if we want to move the column wise, so this is the company wise that we are getting. 25th percentile, 50th percentile, 75th percentile, and the 100th percentile that we are. Clear? So 100 percentile we will get the same values over there. And ठीक है, before we go into the next step, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. That is, what was the steps were there? How we go and find out the quartile को हमने find out कैसे करना? So first of all, we have to arrange the data in the ascending order. So this is the first step, is to arrange the data. Then is to count the number of observations. Clear? Then we say that find the first quartile, that is the basically 25th percentile है, इसको हम ये भी बोलते हैं. Then अगर हमने first quantile को calculate करना है, that is 0.25 into n plus 1. Clear? So n is the number of observation plus 1, and we have applied the round function over there. Round function is there basically because we want the integer value over there, and we have not mentioned any fractional value in the round function. So definitely we will get a integer answer. Like यहाँ पे जैसे 2 आ रहा है, so we have to look for in the series the second observation will act as the this first quarter. तो अगर हम ऐसे इसको यहाँ पे 25th percentile की जगह हम 50th percentile mention कर देंगे, so we will get the median value. Clear? And if we replace it with the 0.75, that is the 75th percentile. ठीक है, ये है हमारे पास मैन्युअली कैलकुलेट करने का जो हमारे पास मैकेनिज्म. क्लियर? एंड how we have gone here and calculating the percentile, that is the
फर्स्ट क्वार्टर के लिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज दी हाउ वी हैव अप्लाइड दिस एक्सेस इज इक्वल टू 0 एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट कॉलम वाइज। देखो ये सारे हमने निकाल दिए इसने, 25th परसेंटाइल के लिए ये सारी वैल्यूज आ रही, 50th, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो, ये एक ही स्टेप में सारे निकाल लिए। अगर हमने इंडिविजुअली निकालने हैं, एक एक वैल्यू निकालनी है, सो दैट वी कैन आल्सो डू। अगर हमने सिर्फ 25th परसेंटाइल निकाला तो ऐसे हम 25th परसेंटाइल भी निकाल। सो वी हैव टू जस्ट अप्लाई हियर मैनुअली, क्या है हमारी कैलकुलेशन डिफरेंट वे से है, बट हियर इन दी फॉर दिस पाइथन इज डूइंग दिस फार्मूला फॉर अस। ये हमने सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई करना है एंड वी विल गेट द रिजल्ट। हमें वो इंडिविजुअल वैल्यू जो है, दैट इज वी नीड नॉट टू सप्लाई द इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है जी। तो हमने वहां पे जैसे मैनुअली वी रिक्वायर 4-5 स्टेप्स टू कैलकुलेट दी, अगर हमने मैनुअली कैलकुलेट करना है, जैसे कॉपी पेन के ऊपर करना है, सो यू वर्क विद दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, अरेंज दी वैल्यूज and then do all those things step by step. But here in Python we are just making use of this formula, that is the quantile formula we are using, and we are getting the result here like this. ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास। अगर हमने इंडिविजुअल निकालना है अलग अलग, सो दैट वी कैन आल्सो। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को 50th परसेंटाइल चाहिए, सो आई विल मेंशन हियर इंडिविजुअल एक एक चाहिए, सो आई कैन गेट हियर 50th परसेंटाइल आल्सो। इफ आई नीड हियर 75th परसेंटाइल, अगर मेरे को 80th परसेंटाइल चाहिए, आई विल मेंशन हियर 0.8, सो दैट विल गेट यू द 80th परसेंटाइल। ठीक है, अगर मेरे को 90th परसेंटाइल चाहिए, आई विल हियर मेंशन हियर 90th परसेंटाइल होता है बेसिकली 90/100, सो 0.9 दिस विल बी मेकिंग, सो यू डू हियर एंड यू विल गेट। ठीक है, पाइथन में हम फार्मूला का यूज कर रहे हैं, वी विल नॉट यूज हियर 5 स्टेप्स टू कैलकुलेट द क्वांटाइल। क्लियर? सो द थिंग्स दैट वी आर डूइंग मैनुअली, हमें पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल की कैलकुलेशन कैसे होती है। पाइथन में हम सिर्फ एक एक फंक्शन यूज कर रहे हैं एंड दैट फंक्शन विल डू एवरीथिंग फॉर अस। यस, इस मेथड में क्लैरिटी है या नहीं है? एनी क्वेश्चन यू हैव ऑन दिस? Clear? So axis is equal to 0, that we are doing it column wise, axis is equal to 1, that we are doing it row wise. Yes, any question on this question? Quartile clear है सभी को? Yes, Mr. Ajay Pratap. Yes, sir, clear. Okay. Yes, Romika. Yes, sir. ठीक है, तो अगर if we look at that program again a bit closely, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट एक डाटा है, डाटा को हमने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है और उस डाटा फ्रेम के ऊपर हमने ये क्वांटाइल मेथड को यूज कर दिया है। ठीक है, जो भी क्वांटाइल हमने फाइंड आउट करना है, 70th 25th 30th कैलकुलेट करना है, यू यूज हियर 0.3, सो दैट यू विल गेट द कॉलम वाइज रिजल्ट हियर लाइक दिस। ठीक है, रो वाइज चाहिए हमें, सो वी कैन मेक इट बाय एक्सेस इज इक्वल टू, सो दिस इज क्वाइट इजी इन पाइथन because we are not going to do it step by step and manually the whole process. So let us move to the next topic. Now next topic is variance. So first of all we will go through the definition of this one. What is variance? होता क्या है हमारे पास? It is used to return the variance of a given set of numbers, a data frame, a row और कॉलम। कोई पता है वेरिएंस के बारे में? एनीथिंग यू नो अबाउट वेरिएंस? दैट इज अगेन वन मोर फंक्शन ऑफ, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट का ही फंक्शन है। किसी ने पहले यूज किया हो ये वेरिएंस के बारे में? ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल में ही आता है हमारे पास वेरिएंस।
ठीक है. So it is used to define how much variable is the data. Yes, variation के लिए है ये. That is, it is there to get what sort of variations are there in our data. ठीक है जी. So like this again, you can look at this particular example. ठीक है. तो इस एग्जांपल में क्या है हमारे पास, अगेन वी रिक्वायर वी हैव ए डाटा फ्रेम एंड देन लेट्स से वी आर वर्किंग ऑन ए पर्टिकुलर कॉलम विप्रो, तो उसकी हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं. सो फॉर ए पर्टिकुलर कॉलम वी विल मेंशन हियर द नेम ऑफ द कॉलम ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेरिएंस, and we can also do it axis wise also. Clear? Column wise and row wise. So this is axis is equal to 0 is we are getting the result column wise. Clear? So dot var is the name of the method. तो थोड़ी सी अगर हमें मेथड की बैकग्राउंड पता है, so we can easily elaborate that. So let us say print TCS का ही हम पहले फाइंड आउट कर ले, df, then in square bracket we mention the TCS and then is the method name is variance. So we have put this whole one into the square. Clear? So this is the value that we are getting for variance. अगर हमने ये पूरा column wise operation करना है, so print df and dot variance, and where we mention the axis is equal to 0. Clear? So we are getting the column wise result here, 2 point something, and then this is given in the exponent form. ठीक है जी. When the result will be bigger, so we are getting the result in the exponent form. So this is how we calculate the variance, and now the background of the variance should be clear. That is basically what we are doing in that it's gives us the variations in our data. ठीक है जी. And the similar sort of one more function we have. So one more function is there, that is the standard deviation. So yes, standard deviation के बारे में किसी को पता है कुछ? What is the standard deviation is? So standard deviation is the square root of variance. Yes. So basically standard deviation is the, also we say this square root. ये हम calculate भी करते हैं. Sometimes we standard deviation from a particular value, like standard deviation from mean, standard deviation from median. So it is used to return the standard deviation of a given set of numbers. So we'll be just applying this formula. Clear? And STD is B. Okay, so this is the standard deviation, that is the square root of variance, you are saying.
Clear? And we say that the variance is the square of standard deviation. So the reverse is the case. Variance standard deviation जो है that is the under root square root of the variance. And अगर हमारे पास standard deviation available है, so if we want to calculate the variance, so we say that it is the square of standard deviation variance. And similarly we can go with the other operation, that is the column wise operation. ठीक है, एक बार जरूर आप हल्की सी इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, इसका यूज क्या है हल्का सा, ठीक है। कैलकुलेट करना तो हमारा ये पाइथन में काम है, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज, वी हैव टू जस्ट मेक यूज ऑफ द फार्मूला एंड वी विल गेट द रिजल्ट। इसमें तो देखो मैथमेटिक्स में तो हमें क्या है, फार्मूला भी याद रखना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, all the values we put into the formula and then we get the result. So here the most important thing that we need to focus is ये standard deviation है क्या, so we need to basically know the basics of all these terms and then we can, calculation is not a difficult job for us. Now the Python will calculate all the things, we have to just make use of the formula in a proper way and the calculations will be done by the Python itself. Clear? So ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दैट वी हैव द अदर फंक्शंस, ग्रुप बाय है हमारे पास, दैट हाउ वी अप्लाई, we'll first look at the syllabus and then we will see whether this is there in our syllabus and we'll continue with the other aggregate operations. ग्रुप बाय भी एग्रीगेट के अंदर ही है, ठीक है। एक बार सिलेबस को वेरीफाई कर लेंगे दैट इज इट इज देयर इन आवर सिलेबस और नॉट। ग्रुप बाय we have done in MySQL also, and then is few applications are given. Similarly the sorting operation. So today we are done with the descriptive stat, जितने भी descriptive stat के हमारे पास functions है that we have covered to store the to sort the data frame in a descending order. So again, how the sorting operation is done with the sort function, sort values, we can do it in the ascending order, in the descending order. We can do with this index, sorting on indexing. क्लियर? तो एक बार हम सिलेबस में से इसको देख लेंगे। रीनेम द इंडेक्स, सो डेफिनेटली इट विल बी देयर इन द सिलेबस। डिलीटिंग द इंडेक्स and then we have pivoting and aggregation. So this is very crucial topic that will be coming up in the our next couple of lectures. Yes, any question in descriptive status? ठीक है, तो एक मेरी साइड से ये जरूर करना कि जितने भी मेथड हमने किए हैं उनका एटलीस्ट हमें टाइटल क्लियर हो, मीन का क्या काम है, मीडियन का काम क्या है, बिकॉज द पाइथन विल नॉट फोकस ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, पाइथन का काम है, फार्मूला गिवन है, फार्मूले के अंदर आपको पुट करनी चाहिए वैल्यू, हाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज, इट विल गिव अस द रिजल्ट। इट विल नॉट चेक इट आउट कि हमें मीडियन के बारे में क्लैरिटी है या नहीं है। ठीक है, अगर हम एवरेज के बारे में हमें क्लैरिटी है, इन विच सिनेरियो वी हैव टू अप्लाई विच फंक्शन, दैट विल नॉट बी टोल्ड बाय द पाइथन। Clear? So Python will put up the values and will calculate the things for us. तो थोड़ी सी जितने भी हमने फार्मूले किए हैं उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी जो है, so that is the, you can say that is the sort of a homework for us. वेरिएंस किस लिए होता है, कहाँ पे यूज होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या यूज है, क्वार्टाइल का क्या मीनिंग है। क्लियर? एंड देन इज सिमिलर द केस विद द मीन, मीडियन एंड मोड। तो हमारी क्लास में से ये कल वाली जो वर्कशॉप थी उसमें सिर्फ भव्या ने पार्टिसिपेट किया है, नो वन एल्स हैज पार्टिसिपेटेड। काफी बिजी है हमारा शेड्यूल, मेरे को लग रहा है।
आई गेव यू ऑन सैटरडे, मैंने बोला था आपको कि इसमें पार्टिसिपेट करना आप लोग। यस अजय प्रताप, यस सर, मैंने भी किया था पार्टिसिपेट। नहीं किया? किया सर। तो फिर हो गया आपका सक्सेसफुल सारा? यस सर। सर्टिफिकेट आ गया? सर्टिफिकेट सर है सर, वो भी ऑनलाइन ही। ऑनलाइन मेरे को सेंड करना अपना सर्टिफिकेट। कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा? पहले शेयर योर एक्सपीरियंस। अच्छा था सर, अच्छा था। ठीक है, क्या 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 यू शेयर योर ऑल एक्सपीरियंस इन 2 मिनट के अंदर अंदर अपना एक्सप्लेन करो हाउ यू बेसिकली स्टार्टेड। कौन सा आपने स्लॉट कौन सा लिया था? स्लॉट था सर मेरा 12 to 2 12 to 2। संडे कल। ठीक है ठीक है। पहले सर हाँ जी हाँ जी। बेसिक कराए थे पाइथन के, बाद में उन्होंने फेस रिकॉग्निशन वाला बेसिक तो कराया। हमें क्लियर ही थे। बेसिक में तो कुछ ऐसा नहीं था कि जो हमें आता नहीं था बेसिक। नो वो सर, वो डिक्शनरी क्लियर थे। बेसिक था, सारे डिक्शनरी तक ही थे, एंड डिक्शनरी अप टू डिक्शनरी वी नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। जो सेकंड क्विज था, सेकंड क्विज वो थोड़ा सा जैसे भव्या बोल रही है कि उसके अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे, 2 क्वेश्चन तो मेरे भी गलत थे उसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, एंड आई आल्सो रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। तो और जो लेवल ऑफ उनका टीचिंग था, दैट इज दे वर पिकिंग अप वेरी गुड एग्जांपल। जैसे लिफ्ट वाला क्वेश्चन था, सो दैट दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वी शुड अप्लाई। ठीक है। जैसे अगर अगर आप किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गए, तो अगर आपकी कंपनी वो लिफ्ट के ऊपर ऑपरेट करती है, क्लियर, लिफ्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, कोई बता सकता है? लिफ्ट में किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज होता है? उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम? ये देखो, लिफ्ट लिफ्ट वॉशिंग मशीन, मोबाइल्स, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी नहीं, मोबाइल नहीं आएगा उसमें। बाकी मोस्टली जो मशीन्स हैं दे बेसिकली यूज दी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। वो पाइथन बेस्ड ही है हमारे पास। जैसे दूसरी उसने एग्जांपल ली थी, बड़ी अच्छी एग्जांपल ली थी, दैट वाज ऑफ स्पीड लिमिट। ठीक है। कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आजकल आजकल जो हमारी यहाँ गाड़ी है, क्लियर, दे आर ईआई बेस्ड। तो वो क्या है कि आप देखो आजकल सेंसर लगे हुए हैं। आपकी गाड़ी अगर वो बोल रहा है कि 60 से अबव जा रही है, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि दैट यू आर वर्किंग ऑन ए लिमिट, 60 से बियॉन्ड चला गया। तो वो क्या है, उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है। वो कोई हवा से थोड़ी आंसर आ रहे हैं कि लो भाई आकाशवाणी हो रही है और ये हो गया। सो एवरीथिंग हैज बीन प्रोग्राम्ड एंड दे वर वेरी वेरी अप्लाइड एग्जांपल्स वर। ठीक है। एक ये भी एग्जांपल थी स्पीड लिमिट के बारे में। ठीक है। सो नो वी लर्न सो मेनी थिंग्स जब हम एक्सपोज होते हैं ना थोड़े डिफरेंट एनवायरनमेंट में। क्योंकि देखो मेरे पढ़ाने का स्टाइल एक फिक्स स्टाइल है ना, वी आर यूज्ड टू दैट वेरी स्टाइल। ठीक है। व्हेन वी एक्सपोज टू ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, सो तब हमारी लर्निंग थोड़ी और इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है। एंड देवर, मेरे को उनका बेस्ट पार्ट ये लगा था, देवर पिकिंग अ वेरी अप्लाइड। लिफ्ट वाली एग्जांपल थी ये, दूसरी ये जो स्पीड लिमिट वाली एग्जांपल थी, क्लियर। एंड ये जो हम एआई पढ़ी जा रहे हैं, ठीक है, एआई के बारे में हम हाउ मच डिस्कशंस वी आर, कितनी डिस्कशंस कर रहे हैं, बट हाउ इट इज एप्लीकेट बेसिकली इम्प्लीमेंटेड इन रियल लाइफ। ठीक है। तो बढ़िया। एंड नो वी हैव 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर क्लास दोज हु हैव सक्सेसफुली डन दिस। तो इस तरह की जो वर्कशॉप है, देखो एक तो फ्री है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी में आप जरूर पार्टिसिपेट किया करो। एंड यू, जब हम अक्रॉस दी डोमेन जाके काम करते हैं ना, तब हमारी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर हम एक ही एनवायरनमेंट में एक्सपोज होके वही काम करते जाएंगे, सो देन यू विल बी फीलिंग दी नो मोनोलिथिक सी हो जाएगी हमारी सारी। चलो, और आपको अजय प्रताप और क्या सबसे अच्छी चीज क्या लगी उसमें से? सर वो लास्ट फेशियल रिकॉग्निशन वाला। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और मेरे से क्या हो गया, मैंने ना पढ़ा नहीं अच्छी तरह से उसको, तो स्टोन की जगह मैंने कुछ और ही एक्सप्रेशन दे दिया वहां पे। और फिर क्या होता है, फिर वो रिजल्ट में सही मैचिंग नहीं हो पाती उस केस में। ठीक है। वो कौन सी गेम थी? दैट वाज, वो बच्चे खेलते भी हैं वो गेम, हाँ, सीजर, स्टोन पेपर सीजर वाली। हाँ स्टोन पेपर सीजर, वो गेम बच्चे खेलते हैं। ठीक है। और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या, आपने एक एक्सप्रेशन गलत दे दिया वहां पे, तो वो उसी हिसाब से कैलकुलेशन शुरू कर देगा। ठीक है। सो आई टुक मोर टाइम ऑन दैट एग्जांपल। फिर मैंने देखा जब वो डाटा मैंने ज्यादा नया बार बार डाटा फीड किया, तो एंड देन यू नो इट रेक्टिफाइड दी थिंग्स, और वो फिर चल गया उसके पास। चलो ठीक है। और बाकियों के साथ भी अगर इस तरह का कोई भी आता है ना, नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन अदर दैट इज, इस तरह का कोई कंपटीशन आता है, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन सच कंपटीशंस। देखो जो क्लास में लर्निंग है, दैट्स ए सेपरेट इशू, क्लियर। हाउ वी बेसिकली फेस द रियल वर्ल्ड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
चलो ठीक है. Yes, भव्या, finally एक भव्या से ले लेते हैं that how she felt about that yesterday's exercise. So I've already told it was really very interesting and I found it very ठीक है. enjoying and entertaining. लास्ट में एक कन्विक्शन सी होती है कि हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हमें लगता है चलो भी जो हमारी सारी एक्टिविटी है नाउ इट इज. और उसके अंदर एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट इज फॉर वो जो गिनीज बुक वाला था ना, अभी वो सर्टिफिकेट पेंडिंग है. अगर आप लॉग इन करोगे यू कैन गेट दैट सर्टिफिकेट आल्सो. ठीक है जी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. थैंक्स. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.